संविधान में दोनों हाउस है, दोनों एक हाउस नहीं है, दोनों हाउस है। At least on the last day, no, at least on the last day, let us listen to the leader of the opposition. Please, I can tell you, during 1 year, if I have learnt maximum, I have learnt from the leader of the opposition and the senior leaders. In my chamber, they have been a source of enlightenment. I plead with you, it's a very embarrassing moment for me. As governor also for 3 years, I never came out with any document for 6 months or 1 year or 2 years. I don't comment whether it is advisable or not. I feel humbled and embarrassed, but please listen to the leader of the opposition with full attention. Let us set a good example. Please, no Harinathji, no Harinathji. Harinathji, anyone out of track may be named by me. I may have to name. Leader of the house, I may have to name your member. I may have to name his name. No, I may. Please, we will hear leader of the opposition, irrespective of the situation that what he says may not be generally palatable to all. Please, sir. And I'm sure, sir, you will bear this in mind. It's the last day. Help me that we all part way with a good resolution. नहीं, हम तो आपकी बात, हम तो इसमें विश्वास रखते हैं, कल करने का आज करो, आज करने का अभी करो, पल में प्रलय होगा फिर करोगे कब। तो हमारी नीति तो यह है सभी जल्दी होना और टाइम पे होना। लेकिन सर, ये प्रजा लोकतंत्र में एक ऐसी बात होती है और डिबेट में छोटे मोटे विषय आते हैं और एक दूसरे के विषय में कुछ कहते हैं, तो अगर वो बहुत अनपार्लियामेंट्री है, किसी को दुखी करता है बहुत, तो उस वक्त आप कह सकते हैं ये अनपार्लियामेंट्री है, ये ठीक नहीं है। लेकिन वहां जो हमारे आदिर रंजन चौधरी साहब को निलंबित किया गया है, वो फ्लिम्सी ग्राउंड, उन्होंने इतना ही बोला, नीरव मोदी, नीरव मीन्स शांत, साइलेंट, अरे मुंह, इसीलिए नीरव मोदी बोले तो इसके ऊपर आप सस्पेंड करते हैं। It happened there, sir. It happened in the other house. अरे अदर हाउस, सर, I am pleading with you, Vice President of India and Chairman of this House, because you have to protect the democracy. I will react, sir. I will react. You have to. Thank you. ऐसा नहीं होता सस्पेंड करना, क्योंकि उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में है, कैसा अटेंड करना, और वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आते हैं, कैसा करना। थैंक यू सर, थैंक यू। सीबीआई, सीबीसी सिलेक्शन में वो रहते हैं, वो यानी टू deprive from all these institutions. If papers to be laid on the table, suspend him, it is not good. It is not good. Sir, this house unanimously. Shri Muralidharan, V. Muralidharan. Sir, can I have 1 minute before the paper leak? Sir, नहीं सर, ये जरूरी है। I have called papers to be laid on the table. That's correct, sir. I agree with that. Sir, the convention of this house. I will look into it. 1 second. The convention of this house is that the conduct of the other house is not at all discussed in this house. Look here. So the comments made by the leader of the opposition has to be examined and expunged. Okay. And it should be censored. Shri V. Muralidharan. Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Shri Prahlad Singh Patel ji, I rise to lay the papers listed against his name and serial number 1A in today's revised list of business. Shri Ashwini Kumar Chaubey.
तो देखिए, राज्यसभा में सीधे सीधे नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का मुद्दा उठाया और लगातार उनकी तरफ से हंगामा देखने को मिल रहा है। मेरे सहयोगी रमन लगातार बने हुए हैं। रमन, जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे कि आज पूरे आसार हैं दोनों सदनों में ही ये मुद्दा उठाएगा विपक्ष, और राज्यसभा में हम वो कमोबेश वो तस्वीर देख भी रहे हैं। देखिए, लोकसभा का मामला होने के बाद भी ये तय हुआ था बैठक में, मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में जो बैठक हुई थी उसमें ये तय हुआ था कि अधीर रंजन चौधरी के मुद्दे पर दोनों सदनों में मामला उठाया जाएगा, हंगामा किया जाएगा और उसके बाद गांधी प्रतिमा पे प्रदर्शन किया जाएगा। यानी कि विपक्ष ने इसे एक बड़ा मुद्दा के तौर पर सामने लाया है, क्योंकि इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव में मणिपुर के मुद्दे पर जब अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था, विपक्ष के पास एक हथियार था कि अविश्वास प्रस्ताव पे जब तक चर्चा नहीं होती, मणिपुर पे चर्चा नहीं होती, तब तक सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी जाएगी। लेकिन आज चूंकि सदन का आखिरी दिन है और आखिरी दिन विपक्ष ने फैसला किया है कि अधीर रंजन चौधरी के मुद्दे पर सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी जाएगी, और इसीलिए लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के द्वारा लगातार हंगामा जारी है। और वैसे भी हमने रमन देखा कि अधीर रंजन चौधरी को लेकर किस तरह से सत्ता पक्ष जब भाषण करता है, उनकी तरफ से जब मंत्री भाषण देते हैं तो अधीर रंजन का नाम होता है। वो लिस्ट में उनका नाम था नहीं वक्ताओं की, उसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि सस्पेंशन तो विपक्षी नेताओं के पहले भी हुए हैं। लेकिन अधीर रंजन के सस्पेंशन को लेकर कांग्रेस इतना हार्ड अपना मूव क्यों दिखा रही है? देखिए, विपक्ष के सांसदों का सस्पेंशन इससे पहले भी होता रहा है। राज्यसभा में भी संजय सिंह का सस्पेंशन हुआ। इससे पहले रजनी पाटिल कांग्रेस की सांसद हैं, उनका सस्पेंशन हुआ। काफ़ी दिनों तक वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाई। लेकिन अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस संसदीय दल के नेता हैं, एक बड़े नेता हैं, और अधीर रंजन चौधरी का सस्पेंशन इस बिना पे करना, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा है कि नीरव मोदी का नाम लेने के चलते उनको सस्पेंड किया गया। हालांकि उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जो बंगाली भाषा उनकी है, मातृभाषा है, बंगाली भाषा है, लेकिन वो जब हिंदी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो मतलब होता है उस शब्द का, उसका मतलब वो समझा नहीं पाते। इससे पहले भी कई बार गलती हुई, राष्ट्रपति को उन्होंने कुछ विशेष नाम से संबोधित कर दिया था, और इसीलिए अधीर रंजन चौधरी के सामने दिक्कत होती है अपनी भाषा को लेकर। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा सरकार की तरफ से इसे बना दिया जाएगा कि अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, इसकी उम्मीद विपक्ष को नहीं थी। ठीक है।